मैं समझदा 2026 ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ लुधियाने तो एक ऐसा मुहिम शुरू करांगे। 2026 में एक बड़ा आंदोलन होगा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बड़ी अहम खबरों पर बात करने वाले हैं। पहली खबर है कि पंजाब के शाही इमाम हजरत मौलाना उस्मान लुधियानवी ने खुलेआम मीडिया के सामने यह ऐलान किया है कि हम 2026 में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और दोस्तों, वही हजरत मौलाना अरशद मदनी ने एक बड़े मुद्दे पर अपनी खामोशी तोड़ दी है और एक बड़ा ऐलान भी किया है। लेकिन आइए सबसे पहले हम पंजाब के शाही इमाम हजरत मौलाना उस्मान लुधियानवी के उस आंदोलन के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि जिसमें पंजाब के शाही इमाम हजरत मौलाना उस्मान लुधियानवी ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर यह बात कही है कि हम उन लोगों के खिलाफ 2026 में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं कि जो लोग धर्म को देखकर लिंचिंग कर रहे हैं, कि जो लोग धर्म को देखकर औरतों को निशाना बना रहे हैं और जो लोग धर्म के जरिए मजलूमों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ बाकायदा हम 2026 में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप खुद सुनिए हजरत मौलाना उस्मान लुधियानवी की ही जुबानी कि आखिरकार इस आंदोलन के ताल्लुक से मजीद क्या कुछ कहा है। पहली गल ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 2026 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਸਦੇਵ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਪਾਏਗੀ ਔਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਅਕਸਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਔਰ ਕਤਲ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੀ ਪੜੋਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हैं वो सुरक्षित हो सके। अब आइए हजरत मौलाना अरशद मदनी के उस बयान के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि जिसमें बाकायदा हजरत मौलाना अरशद मदनी ने एक बड़े मुद्दे पर अपनी खामोशी तोड़ दी है। बाकायदा हजरत मौलाना अरशद मदनी ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए इस मुद्दे पर प्रेस नोट जारी करते हुए यह बात कही है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। यह महज एक कत्ल नहीं बल्कि हैवानियत और दरिंदगी की इंतहा है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस्लाम इसकी हरगिज इजाजत नहीं देता। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने इस्लामी तालीमात के खिलाफ वर्जी ही नहीं की बल्कि इस्लाम को बदनाम करने का काम किया है। इसलिए ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दे देनी चाहिए। मजहबी शिद्दत पसंदी और मुनाफरत हमारे मुल्क को भी तबाह व बर्बाद कर रही है। क्रिसमस के मौके पर ईसाई बिरादरी के साथ फिरका परस्त अनासिर ने जो कुछ किया उसे भी दुरुस्त ठहराया नहीं जा सकता। ये एक तरह से आइन में शहरियों को दी गई मजहबी आजादी पर खुलेआम एक हमला है। जगह जगह चर्चों पर हमले हुए, ईसाई बिरादरी को अपना त्योहार मनाने से रोकने की कोशिश की गई। कुछ दिन पहले बिहार के नालंदा में कपड़े की फेरी लगाने वाले एक मुस्लिम को कुछ लोगों ने नाम और मजहब पूछकर इतनी बेरहमी से मारा कि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। केरला में भी इसी तरह का वाकया रोनुमा हुआ
जहां छत्तीसगढ़ के एक दलित नौजवान को बांग्लादेशी कहकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके चंद रोज बाद ही उड़ीसा में मगरबी बंगाल के 3 मुस्लिम मजदूरों की मॉब लिंचिंग हुई। इसमें से एक मर गया और 2 लोग अस्पताल में जेर इलाज है। मगर इन वाकयात की ना तो हुकूमत ने मजम्मत की और ना ही इस ताल्लुक से किसी का भी बयान सामने आया है। और बांग्लादेश के वाकये पर टीवी चैनलों पर चर्चा और मुल्क में हो रही मॉब लिंचिंग पर खामोशी, जो बेहद अफसोसनाक है। इस दोहरे रवैये को क्या नाम दिया जाए? यकीनन ये वो हिंदुस्तान हरगिज नहीं जिसका ख्वाब महात्मा गांधी, शेखुल हिंद, मोतीलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और हमारे अकाबरीन ने देखा था। अब आइए आखिर में हजरत मौलाना महमूद मदनी के ताल्लुक से भी एक जरूरी खबर पर बात कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, बाकायदा हजरत मौलाना महमूद मदनी ने दिल्ली में उलमा के साथ एक मीटिंग की और उस मीटिंग में कुछ ऐसे ऐलानात हुए जिसे हर एक मुसलमान को जरूर सुनना चाहिए। जी हां दोस्तों, बाकायदा हजरत मौलाना महमूद मदनी ने अपना प्रेस नोट जारी करते हुए दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग के ताल्लुक से यह बात लिखी है। नई दिल्ली तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर एहतमाम मदनी हॉल दफ्तर जमीयत उलमा हिंद ITO नई दिल्ली में एक रोजा तारुफी व तंजीमी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इजला के जिम्मेदारान, मुअल्लिमीन और वाबस्तगान मकातिब ने शिरकत की। इजलास में शुरका को इस अम्र की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि मकातिब महज तालीमी इदारे नहीं बल्कि मिल्लत की फिक्री, अखलाकी और रूहानी बुनियादों के मुहाफिज है और उनका इस्तेहकाम दर हकीकत कौम के मुस्तकबिल की जमानत है। इजलास की सदारत जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने की। अपने खिताब में हजरत मौलाना महमूद मदनी ने नई नस्ल के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ को मौजूदा दौर की सबसे एक अहम जिम्मेदारी करार देते हुए कहा कि पुरफितन हालात में बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम और तरबियत एक अजीम अमानत है, जिसमें किसी भी किस्म की गफलत नाकाबिल तलाफी नुकसान का सबब बन सकती है। मौलाना मदनी ने नियत की अहमियत पर जोर देते हुए इसकी मुसलसल इस्लाह को जरूर करार दिया है और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल का हवाला दिया कि मैंने नियत से ज्यादा पलटने वाली कोई चीज नहीं देखी। उन्होंने वाजे किया है कि नियत की इस्लाह कोई वक्ती अमन नहीं बल्कि एक दायमी कोशिश है, जिसके लिए मुसलसल खुद एहतसाबी और अल्लाह ताला से रुजू ना गुसी रहे। खिताब के दौरान मौलाना मदनी ने इनफरादी कोशिश के बजाय इज्तिमाई निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म कोशिश की अहमियत को उजागर करते हुए फरमाया कि इज्तिमाइयत ही वो जरिया है जो काम में तसलसल, हौसला और असर अंगेजी पैदा करती है। उन्होंने इस अम्र पर भी जोर दिया कि दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा हिंद का एक मरकजी और तरजीही शोबा है और आइंदा बरसों तक मकातिब के मैदान में मेहनत जमीयत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। इस मौके पर जिम्मेदारान से अपील की गई कम अज कम 5 दीगर मकातिब को भी मुनज़्ज़म करे और अपने इलाकों के तमाम बच्चों को मकातिब से वाबस्ता करने को अपना नस्बुल ऐन बनाए। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने फरमाया कि अकाबिर उम्मत की इल्मी व अमली खिदमात का तज़किरा करते हुए मकातिब के साथ दर्स कुरान और दर्स हदीस के मुनज़्ज़म निज़ाम पर जोर दिया जाए ताकि तालीमी व तरबियत का एक मुतवाज़िन और जामे ढांचा कायम हो सके। दीनी तालीमी बोर्ड के मुआविन नाज़िम उमूमी मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ़ान मंसूर पुरी ने ऑनलाइन खिताब करते हुए बच्चों की उम्र की मुनासिबत और वालिदैन के मुअल्लिमीन की मुश्तरका जिम्मेदारियों पर मुफस्सल रोशनी डाली। मौलाना मोहम्मद यूनुस ने भी इजहार ख्याल किया और मकातिब की मेहनत को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म किया। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह पंजाब के शाही इमाम हजरत मौलाना उस्मान लिद्वानी ने खुलेआम और मीडिया के सामने आकर यह बात कही है कि हम इस बात का ऐलान करते हैं कि 2026 में उन लोगों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं कि जो धर्म को धर्म के नाम से लड़ा रहे हैं, कि जो धर्म के जरिए मुल्क के अंदर नफरत फैला रहे हैं, कि जो धर्म के जरिए मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम बाकायदा एक बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर हजरत मौलाना अरशद मदनी का भी बयान सुना, जिसमें से हजरत मौलाना अरशद मदनी ने जिस तरह बांग्लादेश में जो हादसा हुआ उस पर सख्त मजम्मत की, लेकिन मजम्मत करते हुए आज के न्यूज चैनल और आज की मीडिया को यह बात भी कही है कि जिस तरह वह लोग वहां की लिंचिंग पर डिबेट कर रहे हैं और बराबर चैनलों पर चर्चा हो रही है, तो फिर भारत के अंदर जो मुसलमानों की लिंचिंग होती है उस पर खामोशी क्यों, उस पर बहसें क्यों नहीं है, उन पर चर्चा क्यों नहीं होती है? अगर किसी पड़ोसी देश में इस तरह की अफसोसनाक हरकत होती है तो मीडिया चैनल चिल्लाने लगती है और इस बात को जोर देती है कि इस तरह का जुल्म
क्यों हो रहा है, जबकि आए दिन मुसलमानों पर खुलेआम लिंचिंग की जा रही है और भारत की मीडिया इस ताल्लुक से बिल्कुल खामोश है और उनकी जुबानों से एक लफ्ज नहीं निकलता। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग हजरत मौलाना अरशद मदनी के इस बयान के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।